Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So, one of our subscribers requested me, Sir, can you make a video how to manage depression? Now, this depression is a unique word. The depression comes to any mind without any reason, also, and with reason, also. Various researches are going on to find why a person gets into depression. But if we look at our religious books or the teachings from our forefathers, it tells us it comes from various situations and events. And in this situation and events, our expectation level plays a vital role. In most cases, when we set our target very high or we have very high expectation from our life, and when we are unable to fulfill it, sometimes it leads to depression. So, how to avoid it? It is very difficult to find ways why depression comes. But yes, there are ways how we can avoid it. For avoidance of depression, it is very much required that we should know art of diversion of our mind to those activities which gives us pleasure. A person may be getting pleasure in talking with someone. Another person may be getting pleasure in seeing the movies. The third person may be getting pleasure in walking. Another person may be getting pleasure in doing exercise or doing some other activities like helping people. So if we engage our mind towards productive activities, those activities which gives us happiness, we can avoid the situation of depression. Normally, depression seeps into one mind when a person is overthinker. He only looks at the news that gives negative vibes all the way. But if we can avoid the negative news, if we can avoid the negative people, if we can deflect our attention to positive things, because every day some good things are happening, every day some bad things are happening, every day some goodness is there. So if we uh, deflect our minds towards good things, means instead of always thinking what I have not achieved, if I start thinking what I have achieved, it will give you satisfaction. Everybody in this world is an achiever. His or her achievement may be different than others. The only thing is we should count our achievements. Some person may be having one thing, another person may be having something else, third person may be blessed with something else. So let's count what we are having, what we are blessed with, and narrow down our expectation level and start living in the world of reality instead of illusory world. It can avoid the depression. Secondly, always let your feeling be out. Don't keep your feelings inside. If you are feeling bad about something, share with someone. Even there is no person to l- listen your things, you can go to a park, you can face a tree and mug it out. You can shout at a tree, you can shout at a wall, you can shout at the looking glass, looking your face into that. But never keeps your feeling inside you. You should try to figure out a good friend with whom you can confide, with whom you can discuss your problems, you can find good things. Always
try to listen positive things. Avoid negative triggers in your life. I think these are some of the ways through which we can tide over the depression. Because in real life, many troubles will come. In real life, many challenges will come. In real life, many aspirations will be unfulfilled. In life, many people may cheat us, but there are people who will help us. So we have to figure out those people, those are helping us, those are positive, those can take us to the greater heights, and always look for happiness in smaller things. Say you eat a toffee and it is giving you a sweet taste, enjoy it. Say you are eating ice cream and it is giving you a very good feeling, enjoy it. Say you don't want to spend money, still you can enjoy. Go to a park, look at a flower, smell it, enjoy it, the fragrance, it is free of cost. Move out of your house, have a deep breath, enjoy the air. Look at the stars, enjoy their movement. Look at the sky, see how clear it is. So there are things around us that is free of cost, and we can enjoy those things. God bless you. You can give some ideas. I can share those ideas in future videos because every person is creative. You can send these ideas on my WhatsApp number 9811340788. I will repeat 9811340788. You can give some ideas and I will collaborate these ideas and come out with a fresh video. God bless you. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. आज मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे लिखा कि सर एक डिप्रेशन के ऊपर आप वीडियो बनाइए, काफ़ी लोग इससे सफ़र कर रहे हैं. अब ये एक ऐसा शब्द है कि जिसको काफ़ी रिसर्च की गई है, जिसको कुछ जानने की कोशिश की गई है कि ये क्यों होता है. इसके बारे में कोई भी ऐसी ऑथेंटिक चीज़ें नहीं निकल के आई हैं कि ज़रूरी नहीं है कि कोई कारण नहीं हो किसी को डिप्रेशन हो, और कुछ लोगों को कुछ कारणों से भी होता है. तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको अभी एस्टेब्लिश नहीं किया जा सका है. पर जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं या जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनका मानना यह है कि इसका कुछ संबंध हमारे एक्सपेक्टेशन लेवल से है. जब हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं चीज़ों से, लोगों से, आसपास की चीज़ों से, तो भी कई बार हम निराशा के भाव में चले जाते हैं. इससे दूर रहने का क्या नतीजा है, क्या तरीका है? इससे दूर रहने का एक तरीका है कि हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को लोअर लेवल पे रखें और छोटी छोटी बातों से परेशान ना हो. क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे जीवन में अच्छे क्षण होते हैं, कई बार हमारे जीवन में बुरे क्षण होते हैं. कई बार हम प्रयास करते रहते हैं, सफलता नहीं मिलती है. कई बार हम कम प्रयास करते हैं, हम सफल हो जाते हैं. तो हमें अच्छाई और बुराई, जीत और हार में एक समान रहना है. अगर हम गीता से इसका कुछ टीचिंग्स लें तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही बताया कि जो मनुष्य जीत और हार में एक समान है, जो व्यक्ति कुछ अचीव हो गया तो भी उतना ही निश्चिंत है और हार गया तो भी उतना ही निश्चिंत है, वो सही मायने में एक अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है. बहुत चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती है, हम चाहते हैं ऐसा हो जाए, नहीं होता है, दुख भी लगता है, पर उसको जितनी जल्दी हम भूल जाएंगे, जितना जल्दी हम दोबारा अपने को पॉजिटिव रास्ते पे चला देंगे, हम कामयाब हो जाएंगे. तो इसका तरीका यही होता है कि हम हर समय नेगेटिव खबरों को मत देखें, हर समय हम उन लोगों से बात ना करें जो निराश हैं या हमें निराश कर रहे हैं, बल्कि हम वो चीज़ें देखें जो पॉजिटिव हैं, जो अच्छी हो रही है हमारे आसपास. अब जैसे इस समय इवेंट चल रहे हैं, मान लीजिए कोरोना वायरस के, बहुत नेगेटिव न्यूज़ भी आ रही है, पर इसमें भी कुछ चीज़ें अच्छी हो रही होंगी. हो सकता है पर्यावरण साफ हो रहा है, हो सकता है कुछ लोग अपने लोगों से बातचीत कर पा रहे हैं क्योंकि अब वो घर पे हैं,
तो इसमें क्या क्या अच्छा हो रहा है यदि हम उसको देखेंगे तो हमें उससे पॉजिटिविटी मिलेगी। और अगर हम इसमें नेगेटिविटी ही देखते रहेंगे तो हमारा मन परेशान होता जाएगा, और मन एक बार जब परेशान होने लगता है तो उसको शांत करने में बहुत वक्त लगता है। तो मेरा मानना तो ये है कि अगर हमें डिप्रेशन से दूर रहना है, हमें ऐसे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए जो अच्छी बातें हमारे साथ करते हैं। हमें वो एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जिससे हमें प्रसन्नता मिलती है। मान लो किसी को म्यूज़िक में अच्छा लगता है, किसी को किसी से बात करने में अच्छा लगता है, किसी को कोई चीज़ खेलने से अच्छा लगता है, किसी को घूमने से अच्छा लगता है, किसी को एक्सरसाइज करने से अच्छा लगता है, किसी को कॉमेडी मूवी देखने से अच्छा लगता है, किसी को फाइटिंग मूवीज़ देखने से अच्छा लगता है। जो आपको अच्छा लगता है वो ज़रूर करें, क्योंकि जीवन में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सब कुछ खो जाएगा या सब कुछ मिल जाएगा। इसके अंदर हमें इक्विलिब्रियम बना के चलना है। कुछ चीज़ें हमारी मन की होंगी, कुछ दूसरों के मन की होंगी। तो जो जीवन है इसके अंदर एक सामंजस्य होना चाहिए, जिसके अंदर हमें ये मान के चलना चाहिए कि सब चीज़ें हमारे अनुसार नहीं होंगी, हमें उसके अनुसार अपने को ढालना है। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, छोटा सा एग्जांपल है, टॉफ़ी खाता है उसी में उसको मज़ा आ सकता है, आइसक्रीम खाता है उसमें भी उसको मज़ा आ सकता है। किसी को मान लो पैसे नहीं खर्च करने हैं, वो बाग में जाता है, फूल को देखता है, उसकी खुशबू को सूंघता है, उसमें भी उसको आनंद आ सकता है। कोई आसमान की तरफ देखता है, नीले आकाश को देखता है, उसमें भी उसको आनंद आ सकता है। कोई किसी नदी में जाता है, वहाँ पे पानी को चलते हुए देखता है, उसमें भी उसको आनंद आ सकता है। कोई आदमी बाहर घूमने जाता है, हवा को महसूस करता है, उसमें भी उसको आनंद आ सकता है। तो जो आनंद है वो किसी भी चीज़ से आ सकता है। ये आपके ऊपर है कि उसको हमने कैसे महसूस करना है। प्रकृति ने हमें बहुत तरीके दिए हैं जिससे हम खुश रह सकते हैं। वास्तव में हम उस तरफ देखते ही नहीं है, हम उस चीज़ की तरफ भागते हैं जो हमें नहीं मिल रही है, और जो हमें मिल रही है उसकी हम वैल्यू नहीं करते हैं। जो चीज़ हमारे पास है हम एनालिसिस करें कि हमारे पास क्या क्या है, और उसको उससे आनंदित हो। इस चीज़ को मत सोचें क्या क्या नहीं है। और जीवन के अंदर स्ट्रगल तो है, उसको हमें लड़ना है और कभी भी निराश नहीं होना। अब इसको दूर करने के अनेकों उपाय हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं सारे आइडियाज़ मेरे पास हों। आपके पास अनेक आइडिया हो सकते हैं, उनको आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। जो अच्छे आइडियाज़ होंगे उसके ऊपर आधारित हम फ्यूचर की वीडियोस भी बनाएंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9811340788। इस पे आप अपने आइडियाज़ मुझे भेजें, उसको मैं पढ़ता हूँ, और फिर जो अच्छे आइडियाज़ होंगे अपने चैनल के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। पर हमेशा खुश रहना सीखें, उसी से आपका डिप्रेशन से मुक्ति मिल सकती है। गॉड ब्लेस यू ऑल।